Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Today we shall learn grammar. It's English grammar for various classes, like it will be in your syllabus for classes 5th, 6th, 7th, 8th, and even in 9th and 10th classes. So in grammar today we shall learn contractions. Now, contraction is actually a word which is made by shortening or combining of two words. यानी कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, जब हम दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को कंबाइन करते हैं और उनको छोटा करते हैं, शॉर्ट करते हैं, शॉर्टन बनाते हैं, तो ऐसे वर्ड्स को हम कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं. यानी अ वर्ड व्हिच इज मेड बाय शॉर्टनिंग और combining of two words is called a contraction. Generally we use a punctuation mark. When we contract two words, when we contract a word or two words, when we combine two words, we use a punctuation mark that's called as apostrophe. Apostrophe हम use करते हैं जब हम दो words को join करते हैं या जब हम contraction form करते हैं, बनाते हैं. ये apostrophe क्या होता है, जैसे ये possessive cases में भी यूज होता है, एक कॉमा होता है, ऊपर डाला जाता है, कॉमा टाइप का वर्ड, ये साइन एक ऊपर डाला जाता है. फॉर एग्जाम्पल हियर वी हैव अ वर्ड कैन एंड नॉट. कैन नॉट को हम कंबाइन करेंगे, इट कैन बी इट्स फॉर्म्ड एज कांट. कैन नॉट को हमने कंबाइन किया, कांट बनाया, यानी कांट इज ए कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, ए कॉन्ट्रैक्शन, ए कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग कैन प्लस नॉट. Here we saw where to use the contraction, where to use the apostrophe. Apostrophe कहाँ पे use करते हैं? In place of the dropped or omitted letters, जहाँ पे हम dropped letters या omitted letters की जगह पे हम ये apostrophe use करते हैं. Here we saw another example I can quote here. I plus am is equal to I am. यानी I am में हमने क्या किया? I और am को combine किया. We combined these two words. am का जो a है वो हमने ड्रॉप किया, so we used I apostrophe and am. So this apostrophe means some letters have been omitted at this place. So an apostrophe has to be used as at the place where the letters have been dropped or omitted. Similarly, I have a word here, I plus have. There are two chances. Like I will quote here an example. It can be written as I apostrophe and VE, or can it be written as I VE plus apostrophe and then E? No, the first case is right, second one is wrong, because here we have omitted H and A before VE, so we have to use apostrophe before VE, and here I have written it after V, which is wrong because there was no letter which has been omitted between V and E. So now where and when to use the contractions. Contractions, as it's obvious, it makes our writing simpler and easier to understand. जब हम contractions use करते हैं, ये हमारी writing को simple बनाता है और easy बनाता है understand करने के लिए. But moreover, it makes our speaking impressive and fluent. जब हम contractions use करते हैं spoken English में, तो ये हमारी English language को impressive और fluent बनाता है. But it's advisable to avoid contractions while writing formal letters or academic papers. जब हम formal letters लिखते हैं, क्वेश्चन पेपर का आंसर लिखेंगे या एप्लीकेशन लिखेंगे, लेटर लिखेंगे, किसी बड़े ऑफिसर को, अपने से बड़े को लिखेंगे, तो वहां पे बेहतर ये है कि contraction को नहीं यूज किया जाए, because it's regarded as impolite. ये जो है impolite माना जाता है. फॉर्मल राइटिंग में contractions नहीं यूज करने चाहिए. Now there are some confusing words also, like it plus is a contraction. इसका contraction form है its, it apostrophe and s. दूसरा एक its ऐसा ही word है that the possessive form of its. अगर वहां पे देखें तो वहां पे भी its के बाद it के बाद apostrophe और s लगाना था, possessive case. अब दो chances थे, जहां contraction में its में भी apostrophe लगाना था, वहां पे भी apostrophe लगाना था. So grammarians held that जो contraction है वहां पे apostrophe लगाओ और जो possessive है वहां पे apostrophe लगाने की जरूरत नहीं है. So we have to differentiate between these two words. If its is with a contraction, with an apostrophe, then it's a contracted form of it plus is, and if there is not this apostrophe, then we should understand that it's the possessive form of it
इट्स, सो यहाँ पे इट्स की पॉजेसिव फॉर्म में एपोस्ट्रोफी लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही एक वर्ड है विल नॉट। विल नॉट को हम लिखते हैं वोंट, जबकि वोंट जो है इसमें अगर देखा जाए एज पर द अबव साइटेड एग्जांपल्स, वहां पे एपोस्ट्रोफी आना चाहिए एन जो है ओ से पहले आना चाहिए एपोस्ट्रोफी। अगर हम देखें यहाँ पे आई एल एल को एपोस्ट्रोफी ये ओमिट किया है, तो लेकिन यहाँ पे एन के बाद जो है ये एपोस्ट्रोफी यूज हुआ है और ओ को बीच में लाया है। एक्चुअली ये मसला क्या है, इट्स द ओल्डर फॉर्म, ओल्डर यूज जो है, अब ये स्टिल इन वोग है, ये चेंज नहीं हुआ है। सो वी स्टिल यूज विल नॉट को हम ये लिखते हैं वोंट। ऐसे ही एक वर्ड है यल, यू ऑल की जगह यूएस में एक ट्रेंड है, वहां पे लिखते हैं यल, YALL। इट्स अ वर्ड विच इज the contracted form of you all to address a group of people। एक ग्रुप ऑफ पीपल को हम एड्रेस करते हैं, यूएस में वो क्या कहते हैं, you all को याल लिखते हैं, यानी वहां पे वो एपोस्ट्रोफी बिल्कुल यूज नहीं करते हैं, YALL एक ही वर्ड लिखते हैं। ऐसा ही एक कंफ्यूजिंग है, जैसे हमने देखा एम नॉट को हमें क्या लिखना चाहिए थे, इट्स कंट्रैक्टेड फॉर्म इज एंट, AIN एपोस्ट्रोफी और T, जबकि ये कंट्रैक्टेड फॉर्म में हमने आई लगा दिया, whereas there is no I between between these two words AM and NOT, am not में I कहीं है ही नहीं है। अब एक्चुअली ये मसला क्या है, ain't जो है it's a common word, common contracted word which is used in place of am not, is not, तो आर नॉट की जगह भी यही यूज होता है, सो वी यूज ain't, AIN एपोस्ट्रोफी T। इसी तरह एक और वर्ड है शाल नॉट, जो है इसकी जगह शांट यूज हुआ है। यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश करनी है हमें, यहाँ पे दो जगह पे कॉन्ट्रैक्शंस हैं। पहले SHALL को ओमिट किया है, फिर NOT के में जो है O को यूज किया है, यानी दो जगह ओमिशंस हैं, दो जगह लेटर्स हमने ड्रॉप किए हैं, पहले LL ड्रॉप किया है, फिर NOT में O ड्रॉप किया है। यहाँ पे एक चीज हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं दैट दो जगह एपोस्ट्रोफी नहीं लगती है, यानी अगर दो जगहों पे एपोस्ट्रोफी कॉन्ट्रैक्शंस में दो जगहों पे ओमिट किए हैं हमने लेटर्स, तो दो जगह एपोस्ट्रोफी नहीं यूज हो सकते हैं, एपोस्ट्रोफी एक ही जगह पे यूज होता है। सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हमने लिखी हैं। आई हैव को आई लिखते हैं, वी हैव को वी हैव, यू हैव को यू हैव, इसी तरह दे हैव, मस्ट हैव, वुड हैव, माइट हैव, कांट, कुडंट, डिडंट, isn't, ain't, won't, shan't, he is, you are, they are, I'll, I shall को इसको भी I'll, अच्छा इसी तरह I would and I had को I would इसी तरह यूज होता है। चलिए, थैंक यू।